chapter, the X was there, which is called halogen group. Here, the hydroxyl group. The symbol of alcohol is hydroxyl group. Now, what are alcohols? So, when one or more than one hydroxyl group is directly attached to the carbon atom of aliphatic chain. Remember this. अल्कोहल किसको कहते हैं? एलिफैटिक चेन. एलिफैटिक चेन मीन्स ओपन चेन. ठीक है, दैट इज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. एरोमेटिक की बात नहीं हो रही है, बेंजीन की बात नहीं हो रही है. व्हेन one or more than one hydroxyl group is direct attached to the any one carbon of alkane, alkene or alkyne aliphatic chain, then that compound is commonly called alcohol. IUPAC name will be different, but commonly that is called alcohol. Commonly पूरे group कहते हैं alcohol. And if the one or more than one OH means hydroxyl group is attached to the carbon of benzene ring. अगर बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से OH अटैच है, देन इट इज कॉल्ड फिनॉल. तो फिनॉल का मतलब है एरोमेटिक एल्कोहल एंड एल्कोहल का मतलब है एलिफैटिक एल्कोहल. रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन कि एल्कोहल का मतलब है एलिफैटिक एल्कोहल, ओपन चेन एल्कोहल, एंड फिनॉल का मतलब है बेंजीन रिंग वाला, मतलब एरोमेटिक एल्कोहल, एंड ईथर इज द डिफरेंट वन. Now next is there, remember, see here it is written, definition is here of alcohol and phenol. Okay, when one or more than one hydroxyl group is directly attached to carbon atom of aliphatic system, then that is called alcohol. While phenol में क्या होता है, the hydroxyl group is direct attached with aromatic system, that is benzene ring. So definition तो दोनों का हो गया, but we will discuss the alcohol. ठीक है, here the classification of alcohol and phenol. ठीक है, on the basis of number of, ठीक है, alcoholic group, that is hydroxyl group. अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो दैट इज कॉल्ड मोनो एल्कोहल, और मोनो ऑल. दो अटैच होता है तो डाई, 3 अटैच होता है तो ट्राई, और अगर उससे ज्यादा होता है तो पॉली. दैट इज द नेमिंग प्रोसेस. कि जैसे आप वहां पे लिखते थे मोनो हेलो, सिंगल हेलोजन अटैच है, डाई हेलो, 2 हेलोजन अटैच है, so same is here. Now some examples of, ठीक है, that previous slide, this mono di tri, like one OH is there, so this is mono. 2 OH is there, this is di. 3 is there, tri, so this is in open chain. Now in benzene ring aromatic, one is there, mono. Whose mic is on, please? 2 is there, di, and 3 is there, that is try. Someone mic is on, please switch off your mic, or anyone wants to say something, then please. Voice and screen are clear or not? Anyone please tell me. Clear, sir. Whose mic is on? Wait a minute. Okay. So mono, di and tri. Now see, after this page, now we will not discuss phenol. अब हम phenol की बात नहीं करेंगे यहाँ पे. तो
बेंजीन रिंग वाली बात हो गई. बट नाउ आफ्टर दिस वी विल नॉट डिस्कस फिनॉल, वी विल डिस्कस ओनली एल्कोहल. पहले एल्कोहल कंप्लीट करेंगे. दिस होल whatever file is this whole file is containing total 52 pages and all the 52 pages are alcohol. ये पूरा आपका क्या है, alcohol है. So now next I'm going to start the alcohol. As like in haloalkane, you know the first degree haloalkane, second degree haloalkane, third degree haloalkane, primary haloalkane, secondary haloalkane, tertiary haloalkane or alkyl halide. So same is here. First degree alcohol, second degree alcohol and third degree alcohol. Primary alcohol, secondary alcohol or tertiary alcohol. So primary, secondary, tertiary classification means as in previous chapter. When OH is attached with first degree carbon, means that carbon which is attached with another one carbon, that is first degree. When OH is attached with second degree carbon, means that carbon which attached with two carbon, that is called second degree alcohol. And when OH is attached with that carbon which attached with three carbon, then that is called third degree alcohol. तो as like in haloalkane, जैसे haloalkane में था primary, secondary, tertiary, first degree, second degree, third degree, same is here. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स. बस वहां पे X था, X के प्लेस पे यहाँ पे OH रहेगा. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. नेक्स्ट वहां पे था एलिल हैलाइड. इन दैट केस एलिल हैलाइड वाज देयर. हियर एलिल एल्कोहल. कंडीशन इज सेम. वहां कहा गया था व्हेन हैलोजन इज अटैच विथ sp3 hybridized carbon and that sp3 hybridized carbon attached with sp2 hybridized carbon, then that is called allyl halide. अब यहाँ पे हेलोजन की जगह क्या रख देंगे, OH. When OH is attached with sp3 and that sp3 is attached with sp2, then it is called allyl. तो ये प्राइमरी एलिल है. This is secondary allyl and this one is tertiary allyl. Primary, secondary, tertiary, this one is alkyl. ये है primary, secondary, tertiary alkyl alcohol. This one is primary, secondary, tertiary allyl alcohol. Allyl alcohol. Now benzylic, वहां पे benzylic कंडीशन क्या बताया गया था, benzylic is benzene contain CH2. This is benzene. वहां पे था बेंजिल क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड मीन्स हैलाइड. Here it is alcohol means OH. Means OH attached with the carbon and that carbon is attached with benzene ring, then that is called benzyl alcohol. That is called benzyl alcohol. ठीक है. बेंजिल अल्कोहल इज नॉट एरोमेटिक. रिमेंबर दिस, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था बेंजिल हैलाइड इज नॉट एरोमेटिक. सो ये एरोमेटिक नहीं है, इसमें बेंजीन भले आया है, बस दिस इज नॉट एरोमेटिक बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट डायरेक्ट अटैच विथ बेंजीन रिंग. सो बेंजाइलिक सेम. all three classifications are as similar as like in previous, just at the place of halogen OH will be there. Now vinylic, वहां था वाइनिलिक हैलाइड. वाइनिलिक हैलाइड में कहा गया था व्हेन हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड वाइनिल. वहां था वाइनिल हैलाइड, यहाँ पर है वाइनिल एल्कोहल. X की जगह पे OH केवल. So when OH will be attached directly to the sp2 hybridized carbon, then that is called vinyl. Now एग्जाम्पल्स यहाँ कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में क्लासिफाई करना है. एलिल एल्किल इससे मतलब नहीं है, केवल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी वी नीड टू चेक दैट the OH is attached with the carbon, that carbon is first degree or second degree or third degree. So in the first one
the carbon is attached with this carbon directly, no any other carbon. So this is first degree carbon, so this is primary alcohol. In this, OH is attached with this carbon and this is directly attached with one carbon, so this is also first degree alcohol. ठीक है. Next, OH is attached with this carbon and this is directly attached with one carbon, so this is also first degree carbon, so first degree alcohol. Now OH is attached with this carbon and this carbon is attached with two carbon, one side benzene ring carbon, one side CH3, so this carbon is second degree carbon, so this is second degree alcohol. In this, OH is attached with this carbon, which is attached left side with CH3, right side with CH2, means two carbon. So this is also second degree carbon, so alcohol is second degree alcohol. In this, OH is attached with this carbon and this CH3 and left side CH. So this carbon is a third degree carbon. Alcohol is third degree alcohol or tertiary alcohol. You need to just check the OH is present at which carbon and that carbon is attached with how many carbon directly. How many carbon directly. ठीक है. अगर OH जिस कार्बन से अटैच है उस पे केवल एक कार्बन आगे अटैच है, सिंगल कार्बन डायरेक्टली अटैच है, सो दैट इज फर्स्ट डिग्री. अगर उससे दो कार्बन अटैच है, सेकेंड डिग्री. थ्री कार्बन इज द थर्ड डिग्री. नाउ नॉमेनक्लेचर. हेलोएल्केन में क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो प्रीफिक्स यूज करते थे. इन हेलोएल्केन वी आर यूजिंग द प्रीफिक्स. हेलोएल्केन में हम प्रीफिक्स यूज करते थे. प्रीफिक्स मींस दैट वर्ड व्हिच विल बी यूज्ड बिफोर द, ठीक है, एक्चुअल नेम, जिसको हम एक्चुअल नेम मींस मदर चेन के नाम के पहले यूज करते हैं, दैट आर प्रीफिक्स. बट एल्कोहल्स आर यूज द सफिक्स. एल्कोहल यूज करता है सफिक्स. एल्कोहल प्रीफिक्स स्पेशल कंडीशन में यूज करता है. सिंगल फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स यूज करता है एंड इट्स सफिक्स इज ऑल. Suffix is ol, all. So in IUPAC nomenclature we will use the suffix all. ठीक है, all. This is written methyl alcohol. This is not IUPAC nomenclature again. Like in previous chapter, methyl chloride, methyl halide, that is not IUPAC. IUPAC name of this will be main chain, one carbon है, so methane, and suffix is all, so methanol. IUPAC name will be methanol and common name is methyl alcohol. अल्कोहल वर्ड आएगा तो कॉमन नेम है सी. सफिक्स ई हटा करके उसके जगह पे क्या यूज कर देते हैं, ऑल यूज कर देते हैं. एंड द पोजीशन ऑफ OH इज शोन बाय द नंबर्स. पोजीशन किससे शो करते हैं, नंबर से शो करते हैं. एंड नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नियरेस्ट होता है. सो ऑल द कंडीशंस आर सिमिलर at IUPAC name condition. In this, the suffix we will use all. We will write the number for the position at which carbon the OH is present, and then after we will start the numbering of chain, longest chain or mother chain or parent chain from that side from where the OH will be get the nearest position. ठीक है. Now next example. जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है. सो इन दिस बोथ द साइड इज प्रेजेंट OH एंड बोथ द साइड हैविंग सेम पोजीशन. लेफ्ट से शुरू करेंगे फर्स्ट नंबर, राइट से शुरू करेंगे फर्स्ट नंबर. सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वन साइड. सो 1 2, मतलब फर्स्ट पे OH है, सेकंड पे OH है एंड मेन चेन इज इथेन. तो पहले इट इज सफिक्स. रिमेंबर, इसका सफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स नहीं. अगर एट द प्लेस ऑफ OH Cl विल बी देयर एंड Cl विल बी देयर, सो हम यूज करते हैं 1,2 डाइक्लोरो. तो हम लिखते हैं 1,2 डाइक्लोरो मींस द क्लोरो इज रिटेन, द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज रिटेन बिफोर द नेम ऑफ मेन चेन. मेन चेन का नाम क्या है, इथेन. तो हम लिखते थे 1,2 डाइक्लोरो इथेन. बट नॉट in alcohol, we are using the suffix, not prefix.
सो पहले पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, देन पोजीशन एंड देन सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इथेन 1,2 डाइऑल। इसको हम 1,2 ऑल इथेन नहीं लिखेंगे, हियर इट इज सफिक्स नॉट प्रीफिक्स, सो सफिक्स विल बी आफ्टर द मदर चेन के बाद आएगा। और ड्राई डाई ट्राई टेट्रा जो भी आप यूज करते हैं वो नॉर्मली यूज करेंगे। सम एग्जांपल्स देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि मेथिल अल्कोहल इज द कॉमन नेम, IUPAC नेम इज मिथेनॉल, यहाँ से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट वन एन प्रोपिल, फिर आ गया एन, स्मॉल एन मतलब नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल वर्ड का मतलब क्या बताए थे, ओपन चेन, तो ओपन चेन में ये 3, प्रोपिल मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन की चेन है, OH का पोजीशन डिसाइड नहीं है, सो इट विल बी एट फर्स्ट प्लेस। नाउ नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम द नियरेस्ट पोजीशन एंड देन द नेम विल बी प्रोपेन, पहले पेरेंट चेन का नाम प्रोपेन 1 ऑल, फर्स्ट नंबर पे सफिक्स। इन द नेक्स्ट वन आइसोप्रोपिल, so 1 carbon is surrounded by 2 carbon, ठीक है, and functional group is there, so this is numbering will be from the both sides similar position, so 1 2 3, and the name will be again parent chain 3 carbon, so propane 2 all. In the same case here examples are given, glycerol, remember this glycerol, ठीक है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल का IUPAC नेम क्या होगा, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल, सो ग्लिसरॉल का IUPAC नेम याद रखिए, प्रोपेन 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों पे OH है, OH का सफिक्स ऑल है और 3 टाइम्स है तो ट्राई हो गया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ट्राई ऑल, डोंट रीड इट ट्रायॉल, ट्राई ऑल, अलग अलग पढ़िए आपको सारी चीजें पता चलेंगी। देखिए IUPAC नेम बहुत अच्छा होता है, प्रोपेन क्लियरली शोइंग कि मेन चेन कंटेन 3 कार्बन, 1 2 3 पोजीशन इज शोइंग, ट्राई मतलब 3 है, क्या 3 है, ऑल, ऑल मतलब OH, मींस प्रोपेन 3 कार्बन चेन है इन विच फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल 3 कार्बन कंटेन द OH, सो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ग्लिसरॉल का IUPAC name, remember this. Next, that is cyclic alcohol, साइक्लिक एलिफेटिक अल्कोहल, तो साइक्लिक में क्या यूज कर देते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा साइक्लो प्रीफिक्स, सब एवरीथिंग इज सिमिलर, जस्ट वी विल यूज द प्रीफिक्स साइक्लो, साइक्लो, सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में OH लगा है, सो जहां OH लगा है नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे, सो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल बोलिए और हेक्सेनॉल बोलिए। In this 2 are there, so OH is main, so OH will be 1, next will be second, so 2 पे methyl है, methyl it is prefix because side chain है, so 2 methyl cyclopentanol। now ये IUPAC नेम हो गया, IUPAC नेम आप ट्राई करिएगा, चेक करिएगा बुक में। नाउ आई एम गोइंग टू इंटर इन द मेन पार्ट, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सब क्लास 11th वाली बात थी, नाउ मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, सो एल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय 3 मेथड्स, हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का कितना मेथड था, 3 था, that is from alcohol, from hydrocarbon and from halogen exchange। हेलो एरेन प्रिपरेशन कितना मेथड था, 2 था, by electrophilic substitution reaction, by Sandmeyer reaction। here preparation of alcohol is again from 3 way और by 3 method। अल्कोहल का प्रिपरेशन 3 तरीके से कर सकते हैं, from alkene, by reduction and by Grignard reagent, from alkene by reduction and by Grignard reagent we can prepare the alcohol by 3 way, ठीक है, that is from alkene, from reduction or by reduction
and by Grignard. Now, as you know, alcohols are of three types: primary, secondary, and tertiary. So, C. By acid catalyzed hydration, we can prepare first degree and second degree, both the alcohol. फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन कंडीशन. By hydroboration oxidation, this is the important one, this is also a name reaction, hydroboration oxidation. This is on the basis of process, not on the basis of scientists. It only produce first degree alcohol. ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करता है. एक क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाई इट इज ओनली प्रोड्यूसिंग फर्स्ट डिग्री अल्कोहल. ठीक है. नेक्स्ट, इन रिडक्शन aldehyde is producing first degree alcohol, ketone is producing second degree alcohol, and carboxylic acid and esters are producing first degree alcohol. By reduction of aldehyde, aldehyde के reduction से we will get the first degree alcohol. By reduction of ketone, ketone के reduction से we will get the second degree alcohol. By reduction of carboxylic acid and ester, we will get the first degree alcohol. Now next, that is from Grignard reagent. In Grignard reagent, you can see there are three. By reaction of Grignard reagent with methanol, particular substance का रहा है methanol, and this will form primary alcohol. ये बनाएगा first degree alcohol. Reaction of Grignard reagent with aldehyde, other aldehyde, methanol is also al मतलब aldehyde. So methanol is also aldehyde, लेकिन methanol को छोड़ के any other aldehyde will be there. Ethanol, propanol, pentanol, butanol, hexanol, heptanol means one carbon aldehyde को छोड़ के 2 carbon 3 carbon वाले कोई भी aldehyde होंगे, they will react with Grignard reagent, then form second degree alcohol, secondary alcohol. Only methanol will form the primary alcohol. Remember this special condition. From Grignard reagent, we can prepare the first degree and second degree, both the type of alcohol. But for first degree, the reaction of Grignard reagent should be with only methanol. And for second degree, the reaction of Grignard reagents may be any of the aldehyde except methanol. And Grignard reagent can prepare the third degree or tertiary alcohol also, and that will be prepared when it react with ketone. When Grignard reagent react with ketone, then it form third degree alcohol. So Grignard reagent is the substance by which we can prepare the first degree, second degree, and third degree, all three types of alcohol according to the taken reagent. If taken reagent will be methanol, then it produce first degree. If hello, whose mic is on? If taken reagent is other than the methanol, any aldehyde, then that will form second degree. And if the taken reagent is any ketone, then it form third degree alcohol. थर्ड डिग्री अल्कोहल केवल एक मेथड से बन सकता है, इसके अलावा किसी मेथड से आपके सिलेबस में नहीं है. रिमेंबर दिस. सो once again we are going to discuss the preparation of alcohol. Alcohols are prepared by three method, that is from alkene only, not alkane, not alkyne, only alkene. Second by reduction. Third from Grignard reagent. From alkene, it has the two process. First one by acid catalyzed hydration, and second है by hydroboration oxidation. By reduction, it has four ways, four process: by reduction of aldehyde, by reduction of ketone, by reduction of carboxylic acid, and by reduction of ester. From Grignard reagent, it has three way: by reaction of Grignard reagent with methanol, then it will form first degree alcohol.
By reaction of Grignard reagent with other aldehyde, then it forms second degree alcohol, and by reaction of Grignard reagent with ketone, then it forms third degree alcohol. Now another information, the second one which I had written by reduction, ठीक है, in your book this is given the name by reduction of कार्बोनिल कंपाउंड, आपके बुक में इसका नाम दिया हुआ है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. सो व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड, अभी जान लीजिए, all those compounds which contain, all those organic compound which contain C double bond O, जिस भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O होता है that are called carbonyl compound. ठीक है, all the compounds which have C double bond O that are called carbonyl compound. So in aldehyde, aldehyde में क्या होता है, CHO, CHO ऐसे लिखते हैं, so C डबल बॉन्ड O उसमें आया. नेक्स्ट इन कीटोन, कीटोन में क्या लिखते हैं, RCO R डैश C डबल बॉन्ड O आया. नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O और आगे हो जाता है OH, ऐसे लिखते हैं. सो RC डबल OH C डबल बॉन्ड O आया. नेक्स्ट दैट इज ईस्टर RC डबल बॉन्ड O और RC डबल O R डैश, सो इसमें भी ये आया. सो ऑल फोर आर कार्बोनिल compounds. So what are carbonyl compounds? Those organic compound in which C double bond O is present in any way, in any manner. एल्डिहाइड के फॉर्म में, कीटोन के फॉर्म में, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में, चाहे ईस्टर के फॉर्म में, दैट आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स, उनको कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड. इसीलिए कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पे दिया हुआ है 4, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर. So now I am going to start the first one from alkene. ठीक है, from alkene. In from alkene, as you can see, by acid catalyzed hydration, acid catalyzed hydration, hydration and dehydration दो होता है, hydration and dehydration. Hydration means attachment of water. हाइड्रेशन में वाटर अटैच होता है. ठीक है, अटैचमेंट ऑफ वाटर, वाटर कंपाउंड से जाकर के अटैच होता है, वाटर ऐड होता है, दैट इज यू कैन से एडिशन ऑफ वाटर. एंड डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर. सो सी, हाइड्रेशन इज एडिशन रिएक्शन. आपको रिएक्शन पहचानना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कुछ नहीं है. हाइड्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन. इसमें एडिशन रिएक्शन हो रहा है और क्या ऐड हो रहा है, वाटर, तो इसलिए हाइड्रेशन कर दिए. और डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर रिमूव हो रहा है, रिमूवल को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन. सो हाइड्रेशन इज एडिशन प्रोसेस, डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल प्रोसेस. तो यहाँ पे हमको पढ़ना है हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर. सो यहाँ लिखा है व्हेन एल्कीन react with water in presence of acid as catalyst. Acid as catalyst. Acid means H2SO4 will be act as catalyst here. ठीक है, और HCl will act as catalyst. Any acid will be there which will be act as catalyst. And another condition it is saying कि if unsymmetrical alkene will be there. Unsymmetrical means एल्कीन है, सो डबल बॉन्डेड कार्बन पे बस देखेंगे कि बोथ द कार्बन हैव सेम हाइड्रोजन एटम और डिफरेंट हाइड्रोजन एटम. अगर दोनों, इफ बोथ द डबल बॉन्डेड कार्बन हैव सेम हाइड्रोजन एटम, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन. तब उसको कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन. एंड इफ
both the carbon have different hydrogen atom, different number of hydrogen atom. अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन एटम अलग अलग है, then that is called unsymmetrical alkene. If unsymmetrical alkene will be there, अगर वहां पे unsymmetrical alkene होगा, then this addition reaction will follow the MKR. MKR क्या था? Negative part will attach with that double bonded carbon which has less number of hydrogen. Negative part उस पे अटैच होगा जिस पे हाइड्रोजन कम होता है. Now see first example. See here, this one is symmetrical. कैसे symmetrical? डबल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों पे दोनों साइड दो दो हाइड्रोजन है. So both the double bonded carbon have same number of hydrogen. It is react with water in presence of acid. Why acid is required? So as you know, in acidic medium, water will be break into H plus and OH minus. ठीक है. If जैसे आपने क्लास 9th 10th क्लास 10th में क्वेश्चन था, why tap water not why distilled water not conduct electricity but tap water conduct electricity. ठीक है. तो रीजन क्या था? in distilled water water molecules are present, that is water molecules are present, means water is present in molecular form, that is neutral form, that's why it not conduct the electricity. But in tap water the ions are present. So same is here, due to acidic medium it contain ions. So water will be not in molecule form, that will be in ionic form, and that ions are attack on double bonded carbon to break one bond and form the corresponding alcohol. और क्या बनाता है corresponding alcohol? एक पे H जाएगा, एक पे OH जाएगा. Now if both the carbon have same number of hydrogen, तो किसी पे भी H भेज दीजिए, किसी पे भी OH भेज दीजिए. Numbering will start from that carbon where the OH will get the least number. So 1, 2. So its name is ethane. Ethane 1 all. Ethane 1 all और ethanol भी लिख सकते हैं. But if unsymmetrical alkene is there, in unsymmetrical C, double bonded carbon, the right side double bonded carbon have 2 hydrogen and the left side double bonded carbon have 1 hydrogen. So if the double bonded carbon have different number of hydrogen, then it is called unsymmetrical. Then the same reaction will follow by MKR. तब ये MKR के थ्रू होगा, means it will break into 2 part, H plus and OH minus. अब कोई किसी पे नहीं जा सकता. MKR कहता है negative will be attached with that double bonded carbon which has less number of hydrogen. उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम है. सो नेगेटिव कम्स एट CH. ठीक है. सो प्रोडक्ट ये बनेगा, नेगेटिव वाला किस पे गया? नेगेटिव मींस OH माइनस विल बी मूव एट लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्डेड कार्बन मींस CH. सो ये बनाया CH3 CH OH CH3. ठीक है. So ये MKR हो गया. Now we need to discuss the mechanism. 2 mechanism are over already, SN1 SN2. Now we are going to discuss the third mechanism. इस चैप्टर में टोटल इस चैप्टर की बात कर रहे हैं 5 mechanism है, 4 से 5. ठीक है. and 2 in chapter 1, 4, 5 in this chapter, and next is aldehyde ketone carboxylic. 1 mechanism is there. So mechanism total 6, 7 था, जिसमें से 2 कंप्लीट हो गया. अब 4 या 5 इसमें है. तो फर्स्ट mechanism ऑफ दिस चैप्टर, ओवरऑल द थर्ड mechanism. याद रखिएगा mechanism क्या है. इस mechanism का नाम है, ये NCERT के एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है. 2-3 तरीके से कहा जाता है इसका नाम. mechanism ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एक ये है. हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मतलब एथीन. mechanism of hydration of ethene.
इथीन का हाइड्रेशन, रिमेंबर द नेम। इसकी हेडिंग केवल मैकेनिज्म नहीं होगी, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन एक हुआ। सेकंड और करके लिखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ वाटर विथ एथीन, वाटर का एथीन से एडिशन। थर्ड एंड फाइनल नेम, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथीन, इथीन से इथेनॉल बनाने का मैकेनिज्म। सो 3 नेम्स विल बी देयर, एनीवन कैन कम इन योर एग्जामिनेशन और टेस्ट पेपर। ठीक है, फर्स्ट वन मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन, और एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथीन, ऐसे भी कहेगा, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथीन, जो कि आपका टॉपिक का नाम है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथीन। नेक्स्ट, mechanism of addition of water with ethene, and last mechanism of formation of ethanol from ethene और conversion of ethene into ethanol, इथेनॉल से एथीन बनाने का प्रोसेस, सॉरी इथीन से इथेनॉल बनाने का मैकेनिज्म। सो दिस मैकेनिज्म कंप्लीट्स इन 3 स्टेप, ये मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन है प्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सेकेंड है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, थर्ड है डीप्रोटोनेशन। सो दिस मैकेनिज्म इज कंप्लीट्स इनटू 3 स्टेप। फर्स्ट वन प्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, प्रोटोनेशन होगा कार्बोकैटायन बनेगा। सेकेंड दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एंड थर्ड डीप्रोटोनेशन। मैंने आपको अभी जब ये रिएक्शन बता रहा था तो मैंने कहा कि H2O will be break into H plus and OH minus, OH minus one will be move at one carbon and there will be move at another carbon. It is not actually happen in this way. It happens in 3 step. First step प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन जितने मैकेनिज्म अब सब आपके आएंगे इसके बाद यहाँ से, दैट ऑल हैव 3 स्टेप, उसमें यही 2-3 स्टेप हमेशा रहेगा। प्रोटोनेशन कहीं कहीं पे रिमूवल होता है, अटैक होता है, एंड डीप्रोटोनेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में होगा क्या, देखिए वाटर पहले से प्रेजेंट था, वाटर पहले से प्रेजेंट, ठीक है, H2S ने H प्लस दिया या एसिड जो भी था वो आप इसके ऊपर एक स्टेप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है, दैट इज H2SO4, पहले H2SO4 है, when it dissolve in water then it give the H plus and HSO4 minus, H2SO4 will be first break into, ठीक है, H plus and HSO4 minus, पहले H2SO4 H plus HSO4 minus में ब्रेक होगा। now this H plus will be attack on water, ये H plus इस H2SO4 का एसिड का है जो वाटर पे अटैक करेगा, एंड आपको पता है वाटर विल टेक द प्रोटॉन टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन, इट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। नाउ दिस हाइड्रोनियम आयन विल अटैक, ठीक है, दिस हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ बढ़ रही है, 3 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं जबकि उसकी वैलेंसी 2 होती है। सो प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन पे नहीं है, ठीक है, दिस विल बी अटैक ऑन, ठीक है, इथीन, इथीन पे अटैक करेगा, एंड ड्यूरिंग अटैक ऑफ इथीन, जब ये इथीन पे अटैक करेगा, ठीक है, देन व्हाट विल बी हैपन, अब होगा क्या, इथीन पे अटैक करेगा तो इथीन में से, ठीक है, एक H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, एक H जो निकलेगा दैट विल बी फॉर्म हियर पॉजिटिव साइन,
यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से H निकलेगा? जो इसमें वाटर इज द कैरियर, रिमेम्बर दिस। H इथिन में से नहीं निकलेगा, H आपका वाटर में से निकलने की बात हो रही है। वाटर इज द कैरियर, जैसे ऑटो वाला होता है, आप ऑटो पे बैठे, कहे हमको पड़ाव जाना है तो पड़ाव जाके उतार दिया। सो वाटर इज हियर कैरियर, इट कैरी द H प्लस ऑफ एसिड। मैंने अभी आपसे कहा कि वाटर का H प्लस जाता है, बट इन रियल वाटर का H प्लस नहीं जाता है। दिस H प्लस कम्स फ्रॉम एसिड। पहले एसिड ने H प्लस दिया, दैट H प्लस इज कैरीड बाय वाटर, वो वाटर ला करके H प्लस यहाँ से दिया एल्कीन पे। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो गया, दूसरे कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। सो नाउ डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्डेड हो गया, H प्लस इसमें आ गया और H2O वापस यहाँ से निकल गया। सो वाटर इज एक्ट एज कैरियर। वाटर पहले स्टेप में कैरियर कवर किया, एंड H प्लस इज अटैच विथ एल्कीन, अटैच विथ एल्कीन, H प्लस एल्कीन से अटैच हो गया। So this is protonation because H plus is called proton. Proton is added with alkene, double bond break हो गया and form a chain having one carbon contain positive charge. So it is carbocation. Carbocation बना. Second step. Sir, Now, yes. sir, rearrangement of carbocation takes place or not? If there will be second degree, third degree condition will be there, then अगर वहां पे सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री कंडीशन होगा, देन बाय रीअरेंजमेंट इट विल गेट द मोस्ट स्टेबल कंडीशन, दैट इज सेकेंड और थर्ड। अगर रीअरेंज होने से सेकेंड थर्ड बन रहा है, देन इट विल प्रिपेयर द थर्ड वन, तब रीअरेंजमेंट होगा। बट यहाँ जो कंडीशन बात करें, इसमें चाहे रीअरेंजमेंट हो चाहे कुछ हो, फर्स्ट डिग्री ही बनेगा, तो यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सो रीअरेंजमेंट विल बी डिपेंड ऑन द कंडीशन, कि जिस कंपाउंड में आप करा रहे हैं और जिस कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, उस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर प्लस चार्ज हम शिफ्ट कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, और थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, सेकेंड से थर्ड बन रहा है, तब होगा। ऐसा केस आपके में है भी कि आखिर ये फर्स्ट डिग्री क्यों नहीं बनाता है प्रोडक्ट, क्यों थर्ड डिग्री बनाता है, तो वो सब कंडीशन वहां पे है। अगर होगा तो if the condition to form the more stable carbocation, that is second degree third degree, तब rearrangement होगा। But if condition is not there, only all are first degree, तब rearrangement नहीं होगा। Is that clear? Yes, sir. ठीक है, जैसे इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चाहे इस कार्बन पे जाए चाहे उस कार्बन पे, फर्स्ट डिग्री ही बनेगा। लेकिन अगर यही और कार्बन अटैच हो और बगल वाले पे जाने पे सेकंड डिग्री बन रहा हो, तो सेकंड वाला बनाएगा, तब रीअरेंजमेंट होगा, देन द प्रोडक्ट विल बी चेंज। ठीक है, नाउ इन सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये याद रखिए, आपको बताया गया था न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है? वाटर है। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल हियर? वाटर मॉलिक्यूल। OH अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ हम आपको दिखा दिए, बता दिए कि OH इज अटैकिंग, बट इन एक्चुअल OH इज नॉट अटैकिंग। OH माइनस इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल इज न्यूक्लियोफाइल। वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है। ये सब MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, कि इन हाइड्रेशन व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल वाटर होता है, OH माइनस नहीं होता है। मैंने आपको यहाँ बताया है नॉर्मल इक्वेशन में, इसी तरह सारे लोग बता देते हैं कि H प्लस यहाँ गया, OH माइनस यहाँ गया, बट इन रियल जो H प्लस आया है वो वाटर का नहीं है, दैट H प्लस इज ऑफ एसिड। वो H प्लस आपने देखा कि एसिड से H प्लस निकला, जिसको वाटर ने कैरी किया और वो आकर के एल्कीन पे अटैच हुआ। तो ये H प्लस जो आया है ये वाटर का नहीं है, ये H2SO4 का है। और वाटर में से OH अटैक नहीं करता है, होल वाटर मॉलिक्यूल इज अटैक एज न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल इज H2O, एंड व्हेन H2O इज अटैच, ठीक है, ऑन दैट पॉजिटिव चार्ज कार्बन, H2O पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे जाता है, तो ऑक्सीजन के थ्रू आप देख रहे हैं अटैच होता है। ठीक है, एंड जो कार्बन पे प्लस चार्ज था वो ऑक्सीजन पे आ जाता है, दैट प्लस चार्ज कम्स एट ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज
ऑक्सीजन की वैलेंसी तो ऑलरेडी कंप्लीट है, अब वो आके कार्बन से भी बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन का 3 बॉन्डिंग हो रहा है, वैलेंसी बढ़ रही है, तो उसको माइनस करने के लिए एक प्लस चार्ज लग जा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एल्कोहल. इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एल्कोहल. नाउ लास्ट, डीप्रोटोनेशन. पहले स्टेप में प्रोटॉन अटैच हुआ था, नाउ लास्ट स्टेप, 1H प्लस इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस प्रोटोनेटेड एल्कोहल. प्रोटोनेटेड एल्कोहल से एक H प्लस रिलीज हो जाता है और वापस वाटर के पास चला जाता है. सो H प्लस रिलीज हो गया, प्लस चार्ज खत्म हो गया, एंड अब ये आपका बन गया CH3CH2OH. सो एल्कोहल, एंड जो H प्लस था वो वाटर के साथ गया तो बन गया H3O प्लस. अब ये H3O प्लस यहाँ से H वापस दे देता है HSO4 को और वो बन जाता है H2SO4 वापस. ये H प्लस जो HSO4 से लिया था, यानी कैटलिस्ट ने H प्लस दे करके रिएक्शन स्टार्ट कराया और अंत में वो H प्लस लेकर के वापस बन गया. यही तो कैटलिस्ट का काम है कि रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन के अंत में क्या होता है, बच जाता है. So remember, reaction start with the H plus of H2SO4. First of all, H2SO4 will give the H plus. That H plus will be taken by water to form H3O plus. That H3O plus will be moved and attack on alkene to give the H plus to form carbocation. Now, second step, the water molecule act as nucleophile. Here the nucleophile is water molecule. Remember this. Water molecule is act as nucleophile. It attack on carbocation to form the protonated alcohol. And third step, this protonated alcohol remove the H plus. Proton deprotonation. Protonation मतलब attach a proton and deprotonation मतलब remove a proton. So proton means H plus. This remove the H plus. H plus remove होता है, form the alcohol, and that H plus will be taken by or carried by water. वाटर उस H प्लस को ले जा करके HSO4 को वापस दे देता है जो फर्स्ट स्टेप में बना था, जिससे कि वापस से H2SO4 बन जाता है और हमारा कैटलिस्ट वापस मिल जाता है. सो इस तरह से मीन्स हम तो ये कहते हैं, वी आर सेइंग कि H2O में से H प्लस आया और H2O में से, ठीक है, OH माइनस आया, बट इन रियल H2O में से आता है बट इनडायरेक्टली. H प्लस कम्स फ्रॉम एसिड, एसिड का H प्लस आता है और H2O का OH आता है, और जो H2O का H होता है वो वापस एसिड के पास चला जाता है. बट द न्यूक्लियोफाइल इज नॉट OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल इज वाटर मॉलिक्यूल. पूरा वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक करता है, फिर प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाता है, उसमें से प्रोटॉन निकल जाता है, दैट प्रोटॉन कैरीड बाय वाटर टू फॉर्म H3O and that H3O again form the H2SO4. So this is about the mechanism. So first reaction, that is acid catalyzed hydration with mechanism, is over.